Hello everyone, welcome to another session. We'll be discussing another case, and in this session we'll be talking about right to employment of transgender. Right? So this session will not just cover employment, it will cover various cases and various schemes that are there and the Transgender Act that is there, and we'll also understand this case in the light of all those judgments. Alright, so this is Samiksha Chaturvedi, you are an Academy CLAT educator, and let's start. So what happened is that Shanvi, she completed her engineering from Dr. Adityanar College of Engineering in Tamil Nadu, and in 2010, and then in 2014 she underwent a sex reassignment surgery to become a woman. Right? So earlier this person was a man, and later on he underwent with a sex reassignment surgery and became a woman. All right. इसी के बाद क्या हुआ, शी वर्कड विद सुदरलैंड ग्लोबल सर्विसेज, इट वाज एयरलाइन सेक्टर फॉर ओवर अ ईयर टू गेन एक्सपीरियंस इन द फील्ड, राइट. एंड she went on to work with Air India customer support, domestic as well as international, in Chennai. Now what happened, there was a new employment, a new advertisement with regards to Air India. राइट, एयर इंडिया वालों ने मेंबर ऑफ द कैबिन क्रू के लिए एक एडवर्टाइजमेंट निकाला 10 जुलाई 2017 को, एंड शानवी शी ऑल्सो अप्लाइड फॉर दिस एम्प्लॉयमेंट, राइट, फॉर द रिक्रूटमेंट अंडर फीमेल कैटेगरी. ठीक है ना, अलग से ट्रांसजेंडर के रिगार्डिंग कोई भी कैटेगरी नहीं था, तो शी अप्लाइड अंडर फीमेल कैटेगरी ओनली. ठीक है, तो she cleared the preliminary medical examination and appeared for group dynamic 1 and personality assessment test 2 on 18th August 2017. Later on, the GD and PAT for the post of female training cabinet crew evaluated the candidates on the subjective parameters including overall personality, self-confidence, service aptitude and communication sociability. Right? However, unfortunately, Shanvi was not selected. So what happened that she went to the Supreme Court, she filed a writ, and in that उसने अलेज किया कि इन्होंने मेरा अपॉइंटमेंट नहीं किया है just because she is a transgender woman. Right? The vacancies in the cabinet crew were embarked only for the women. She has assailed the rejection on the touchstone of fundamental rights of Article 14, 15, 16 and 21 of the Constitution of India 1950. वहीं पे एयर इंडिया के साइड से सीनियर एडवोकेट के.वी. विश्वनाथन थे. उनका क्या कहना था कि शानवी की एप्लीकेशन इसलिए रिजेक्ट हुआ बिकॉज शी इज नॉट अ वुमेन बट बिकॉज शी वाज अनेबल टू स्कोर द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द शेड्यूल कास्ट कैटेगरी. राइट, सो अभी तक क्या हुआ है दैट शी वाज रिजेक्टेड दिस एम्प्लॉयमेंट. उनका ये कहना है कि आई एम ए ट्रांसजेंडर वुमेन, दैट इज वाई इन्होंने एम्प्लॉय नहीं किया. वहीं पे एयर इंडिया के साइड से क्या है कि इन्होंने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं लाए हैं, इस वजह से इनका एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ. राइट, सो लेट अस लुक एट सम ऑफ द डेफिनेशन एग्जैक्टली व्हाट डज इट मीन टू बी अ ट्रांसजेंडर. राइट, सो सबसे पहले डेफिनेशन आपकी आती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की. इन्होंने क्या बोला है दैट ट्रांसजेंडर इज एन अम्ब्रेला टर्म फॉर पीपल whose gender identity and expression does not conform to the norms of expectations traditionally associated with the sex assigned to them at birth. इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि जो एक सेक्स असाइन था आपके बर्थ के टाइम पे, उस जो आपका सेक्सुअल जो आइडेंटिटी है आप उससे ना रिलेट करके यू आर एसोसिएटिंग विद सम अदर जेंडर एंड यू आर एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, है ना, इन सम अदर वे. Right, so they are referred to as transsexual if they desired medical assistance in order to make transition from one biological sex to another. So transgender कौन है, वो है जो नॉर्मली अपने जो बर्थ पे असाइन जो सेक्स होता है उससे नहीं रिलेट करते हैं. राइट, और ट्रांससेक्सुअल कौन होते हैं, जो मेडिकल असिस्टेंस की हेल्प से क्या होते हैं, वो अपने आप को चेंज कर लेते हैं इनटू सम अनदर सेक्स. All right, so like Shanvi, she will be called transsexual and not transgender. Why? Because she has changed, she has went through that medical assistant and changed her biological sex to female one. Right? Okay. Now we have a Transgender Person Protection of Rights Act 2019. राइट, सो ये एक एक्ट है जो आपका 2019 में आया था, इसको हम लोग और डिटेल में आगे देखेंगे. इसमें भी आपका ट्रांसजेंडर पर्सन्स डिफाइंड है. राइट, यहाँ पे क्या है,
It means a person whose gender does not match with the gender assigned to that at birth, right? तो यहाँ पे भी सेम चीज है कि आपके बर्थ के टाइम पे आपको जो जेंडर असाइन हुआ था, आप उस जेंडर से अपने आप को नहीं असाइन करते हो, right? And it includes trans men or trans women, whether or not such person has undergone sex reassignment surgery or hormone therapy or laser therapy or such other therapy, right? तो इधर इन्होंने ट्रांस मैन और ट्रांस वुमेन को, चाहे उन्होंने whether that person has taken medical assistance to transform herself or not, it does not matter, right? Person with intersex variations, gender queer, and person having such socio-cultural identity as Skinner, Hijra, Aravinian Jogta, right? So these are the various persons that are included under transgender person for the purpose of this act, right? सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे ट्रांसजेंडर का मतलब क्या हुआ. ओके, नाउ लेट अस लुक एट आवर कॉन्स्टिट्यूशन कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसको लेके क्या क्या चीजें दी गई हैं. ठीक है, तो आर्टिकल 14, 15, 16 और 21 के ही अंडर शानवी ने अप्रोच किया था सुप्रीम कोर्ट को. सिमिलरली हम लोग इधर भी आपको देखने को मिलेगा कि ये जितने आर्टिकल लिखे हुए हैं, ये सारे आर्टिकल आपको राइट टू फ्रीडम फॉर ईच एंड एवरी इंडियन सिटीजन मिलते हैं, राइट? 14, 15, 16 and 21 they are applicable to all Indian citizens, but transgender persons were deprived from their basic rights to freedom and equality. So it is not just that the transgender, it includes every citizen, be it any sexual identity. These articles are applicable to all the individuals, right? अब आर्टिकल 14 आपकी किस बारे में बात करता है? इट डील्स विद इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. आर्टिकल 40 में हमको क्लियरली देखने को मिलता है कि इधर एक्सप्रेशन पर्सन यूज हुआ है. जब हम लोग आर्टिकल 14 पढ़ते हैं, जब हम लोगों ने क्लासेस में किया था, तब हम लोगों ने ये ध्यान भी दिया था कि आर्टिकल 14 सिर्फ इंडियन सिटीजन्स पे नहीं अप्लाई होता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे टर्म क्या लिखा हुआ है? पर्सन्स. तो पर्सन्स में आपका मेल भी आएगा, फीमेल भी आएंगे और थर्ड जेंडर भी आएगा within its ambit. So the transgender is also entitled to legal protection under Indian Constitution in all the spheres of state activity, right? So person में आपके सारे के सारे आएंगे, be it any gender that the person is, right? Because here the term person is used. Now नेक्स्ट इज आर्टिकल 15. आर्टिकल 15 आपका क्या बोलता है? इट डील्स विद द प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, and it includes the third gender under its ambit. As being the citizens, they have right not to be discriminated on the ground of their religion, caste, race and sex. So here आर्टिकल 15 में हम लोग को पता है कि इन ग्राउंड्स के बेसिस पे, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड सेक्स, नोबडी कैन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट यू. और यहाँ पे भी वर्ड सिटीजन लिखा हुआ है, तो कहीं पे भी ये तो लिखा नहीं है कि मेल या फीमेल होना चाहिए. That is why third gender is also covered under this Article 15 definition. They have the right to protect their gender expression in which is majorly reflected through their dresses, actions and behavior. All right. Next is article number 16. Article 16 आपकी equality of opportunity की बात करता है in public employment. तो public employment में हमेशा आपका equal opportunity का right मिलता है. Again, this article is used to broaden the concept of such sex, which includes psychological sex and gender identity within its ambit. तो यहाँ पे भी again you will see that the term is not just limited to male and female. इसीलिए इसके अंदर आपका जो एक साइकोलॉजिकल सेक्स होता है, ये जो जेंडर आइडेंटिटी होता है, ये भी इस आर्टिकल के अंडर कवर्ड है. द ट्रांसजेंडर बीइंग सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैज द राइट टू एम्प्लॉयमेंट एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड दे शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेक्सुअल orientation. So again we have seen that 14, 15 and 16 they all talk about equality in the matters of, in general, in the matters of public employment, and they can't be discriminated. So why does a transgender person gets discriminated, right? Next is article 21. Article 21 states that it gives protection of life and personal liberty, right? It says that no person shall be deprived of his life and personal liberty except according to the procedure of law.
And transgender, we all know that transgender is have always been deprived of their personal liberty and life. The transgender, being the citizen of India, should also have the full right to protect their right and personal liberty. And similarly, Supreme Court has also recognized the right to dignity by recognizing gender identity within ambit of Article 21. So Supreme Court ने बहुत सारे केसेस में ये दिया हुआ है कि आर्टिकल 21 के अंदर जब हम लोग राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की बात करते हैं तो उसके अंदर आपके ट्रांसजेंडर के भी राइट्स आते हैं. So now let us look at some of the judgments. सबसे पहले आपका जजमेंट आता है नाज फाउंडेशन which was held in the year 2009. इसमें नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली. इट इज पॉपुलरली नोन एज नाज फाउंडेशन केस. So in 2009 this was a judgment by a Delhi High Court. So the High Court declared section 377 to be unconstitutional. सेक्शन 377 आपकी किस बारे में बात करता है? इट टॉक्स अबाउट अननेचुरल ऑफेंसेस, राइट. सो बेसिकली ये जब आपकी पीआईएल, जब एनजीओ ने ये पीआईएल फाइल किया था तो उनका ये कहना था कि ये जो आपका अननेचुरल ऑफेंसेस हैं, राइट, जो अननेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है वो आपके एलजीबीटीक्यू को डिस्क्रिमिनेट करते हैं. ठीक है, इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या लिखा कि सेक्शन 377 इज unconstitutional, section 377 of IPC. Why? Because they have been at the forefront in the battle of decriminalization. In 2009 they successfully got the courts to declare section 377 unconstitutional, which violated article 14, 15 and 16. Next case that we have is that of Nalsa judgment. It is a very important judgment when it comes to transgenders. This case, the judgment came in 2014. So in 2016 what happened after this Nas Foundation case, this went into appeal. तो सुरेश कुमार कौशल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये एक केस आया था और इस केस में इन्होंने बोला दैट सेक्शन 377 इज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इन्होंने होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनलाइज कर दिया दोबारा से. So 2013, as we can see, it was a dark year for rights in India in general and LGBTQIA rights in particular, because Supreme Court of India delivered Suresh Kumar Kaushal versus Union of India, where homosexuality was recriminalized. Now, next year 2014 में आपका National Legal Services Authority versus Union of India केस आया. इस केस को बहुत फेमसली बोला जाता है नालसा जजमेंट. इस केस में कोर्ट ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ट्रांसजेंडर पीपल वर रिकॉग्नाइज्ड एज द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री एंड ऑल द फंडामेंटल राइट्स वर एक्सटेंडेड टू देम एंड दे वर गिवन द आइडेंटिटी ऑफ थर्ड जेंडर. सो ये जो थर्ड जेंडर का कॉन्सेप्ट है ये आपके नालसा जजमेंट में आया और इसी जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हर एक ट्रांसजेंडर के पास उनके खुद के फंडामेंटल राइट्स हैं. व्हाई? बिकॉज दे आर ऑल्सो द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री. This case continues to be a landmark case for transgender in this country. The court laid a comprehensive set of guidelines that every state must follow to bring transgender into public spheres and provide remedies for their marginalization. Right? इसके बाद आपका नेक्स्ट केस आता है पुत्तस्वामी जजमेंट ऑफ 2017. केस का पूरा नाम इज जस्टिस रिटायर्ड के.एस. पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इट इज अ वेरी इंटीग्रल जजमेंट क्योंकि यहाँ पे इन्होंने राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट के तरह ट्रीट किया था. आर्टिकल 21 के अंदर जब हम लोग राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी देखते हैं उसी के अंदर आपका राइट टू प्राइवेसी भी आता है. तो इन्होंने राइट टू प्राइवेसी को क्या बोला? इट इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21. सो राइट टू प्राइवेसी वॉज ऑल्सो एक्सटेंडेड टू एवरी इंडिविजुअल irrespective of their gender and sex, and recognition of privacy for members of LGBTQIA community as an inalienable grants them autonomy and protection from state action while exercising their rights to choose their partner. So यहाँ पे LGBTQI के लिए it was a very good judgment because यहाँ पे आपकी एक
प्राइवेसी प्रोटेक्ट हो रही थी और इस प्रोटेक्शन के चलते कोई भी इंडिविजुअल अपने पार्टनर्स को चूज कर सकता था. Hence, the judgment along with Nalsa judgment became a precursor to reading down of section 377 in 2018. 2018 में हम लोग देखेंगे next case, the very important case is Navteej Johar case of 2018. इस केस का पूरा नाम है नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. सो दिस केस केम इन 2018 राइट आफ्टर पुत्तास्वामी जजमेंट. तो इस केस में आप देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया. दैट इज सेक्शन 377 वाज स्ट्रक डाउन टू द एक्सटेंट दैट इट क्रिमिनलाइज सेक्स बिटवीन टू कंसल्टिंग अडल्ट्स. So this judgment delivered by Supreme Court of India is a result of multiple PIL that have been filed by different groups of LGBTQIA community. इसी केस के अंदर जो बेंच थी उन्होंने सेक्शन 377 को कहाँ तक क्रिमिनलाइज किया था? Only till the sexual act was between two consenting adults. If the sexual act was not between the consenting adults, then obviously it was an offense under section 377. The court upheld the provisions of that criminalizing non-consensual acts with children or animals. सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर क्या हेल्ड किया कि ये जो सेक्शन 377 है ये आर्टिकल 14, 15, 16 और 19(1)(a) को क्या करता है? वायलेट करता है. Right? It recognized that every individual, irrespective of their gender identity and sexual orientation, have the right to live with dignity, autonomy and make personal and private without state interference. तो किसी एक पर्सन की क्या जेंडर आइडेंटिटी है, उसकी क्या सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, वो उसका खुद का प्राइवेट मैटर है जिससे स्टेट का कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए. राइट? ओके. सो आफ्टर दिस इन 2019 आपका एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया, द ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल 2019, and this was introduced in July 19, 2019 by Minister of Social Justice and Empowerment Mr. Tharwar Chand Gehlot. इसी के बाद आप देखते हो लोकसभा ने भी पास किया, राज्यसभा ने भी पास किया, एंड अल्टीमेटली दिस ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 इट बिकेम एन एक्ट. Right? And it came into force on 10th of January 2020 for protecting the rights of transgender persons and for their welfare and connected matters. तो ये एक्ट ट्रांसजेंडर्स के लिए स्पेसिफिकली लाया गया था ताकि उनका वेलफेयर हो सके, उनके जितने भी मैटर्स हैं जहाँ पे उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है वो प्रोटेक्शन हम लोग उन्हें दे पाएँ. ना अब इसके अंदर क्या चीज़ें हैं हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं. प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन. सो इस एक्ट में बहुत क्लियरली लिखा गया कि कोई भी ट्रांसजेंडर पर्सन को आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, इंक्लूडिंग डिनायल ऑफ सर्विस एंड अनफेयर ट्रीटमेंट. तो आप सर्विसेज नहीं डिनाई कर सकते हो, आप उनको अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हो. किन किन जगहों पे? आप उनको एजुकेशन में जो है आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, एम्प्लॉयमेंट में नहीं कर सकते हो, हेल्थ केयर में नहीं कर सकते हो. एक्सेस टू और एंजॉयमेंट ऑफ गुड्स, फैसिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू पब्लिक. जितनी भी पब्लिक को सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं वो सारे इनको मिलने चाहिए. राइट टू मूवमेंट, राइट टू रिसाइड, रेंट एंड अदरवाइज ऑक्यूपाई प्रॉपर्टी, opportunity to hold public and private offices, and access to government or private establishment in whose care or custody a transgender person is. So ये सारे जगहों पे कोर्ट ने क्या बोला, इस एक्ट में क्या बोला गया 2019 एक्ट में कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो, आप उनको किसी भी तरह का सर्विसेज नहीं डिनाई कर सकते हो, आप उनको किसी भी तरह का अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हो. सो दीज आर द 8 कैटेगरीज दैट वर गिवन अंडर हियर. ऑलराइट. नाउ राइट टू रेसिडेंस, आपका इसी एक्ट के अंदर राइट टू रेसिडेंस कवर है. इसमें क्या बोला गया है दैट एवरी ट्रांसजेंडर पर्सन शैल हैव अ राइट टू रिसाइड एंड बी इंक्लूडेड इन हिज हाउस होल्ड. जिस हाउस होल्ड में है वहां पे उसको रेसिडेंस का राइट है, वहां पे उसके हाउस होल्ड में इंक्लूजन का राइट है. और अगर इमीडिएट फैमिली, इफ द इमीडिएट फैमिली इज अनेबल टू केयर फॉर द ट्रांसजेंडर पर्सन, अगर इमीडिएट फैमिली नहीं केयर कर पा रही है तो उस पर्सन का रिहैबिलिटेशन होगा, प्लेस्ड इन रिहैबिलिटेशन ऑन द ऑर्डर्स ऑफ कॉम्पिटेंट कोर्ट.
नेक्स्ट इसमें पॉइंट हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट का देखा। सो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड भी नो गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटिटी कैन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट ट्रांसजेंडर पर्सन इन एम्प्लॉयमेंट मैटर्स इंक्लूडिंग रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन। सो फर्स्ट लेवल पे, एंट्री लेवल पे भी आप नहीं डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो, प्रमोशन में भी आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, चाहे आप गवर्नमेंट एंटिटी हो चाहे आप प्राइवेट एंटिटी हो। Every establishment is required to designate a person to be a complaint officer to deal with complaints in relation to such acts. So हर एक establishment, जितने भी establishment जहाँ पे भी employment की बात हो रही है वहाँ पे एक complaint officer होगा जो इस तरह की complaint से deal करेगा। Next important point was vocational training and self employment. जो ट्रांसजेंडर हैं उनको फोर फ्रंट में लाने के लिए, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देने के लिए इस एक्ट में क्या बोला गया कि जो भी गवर्नमेंट है वो उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स लेके आएंगे, ऐसे प्रोग्राम्स लेके आएंगे जिनसे वो लाइवलीहुड अर्न कर सकें, राइट, इंक्लूडिंग देयर वोकेशनल ट्रेनिंग एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। The next important point was regarding education. So education instituted, चाहे वो funded हो चाहे वो recognized हो किसी government द्वारा, shall provide inclusive education, sports, recreational facilities for transgender persons without discrimination. So again आपका education का भी इधर बात हुआ था। Healthcare, the government must take steps to provide health facilities to transgender persons, including separate HIV surveillance center and sex reassignment surgeries. So healthcare में आपका सिर्फ normal health facility की बात नहीं की गई। अगर कोई पर्सन है एंड दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम HIV तो एक सेपरेट HIV सर्विलांस सेंटर इनके लिए बनाना था। और साथ ही साथ इफ somebody wants to go through reassignment, sex reassignment surgeries, so इस तरह की फैसिलिटीज भी गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए। साथ ही साथ द गवर्नमेंट शैल रिव्यू मेडिकल करिकुलम टू एड्रेस हेल्थ इश्यूज ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स एंड प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम फॉर देम। सो सिमिलरली कोर्ट ने क्या बोला, आपको इस तरह के स्कीम्स बनाने चाहिए जिससे उनके जो भी हेल्थ इश्यूज होते हैं उनको और बेटर तरीके से डील किया जा सके। Now, next important thing that they talk about, certificate of identity for transgender person. So a transgender person, if he wants to have an identity certificate, तो इनको क्या करना होगा, एक एप्लीकेशन देना होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को फॉर अ सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी इंडिकेटिंग कि उनका जेंडर क्या है, ट्रांसजेंडर है। एंड अ रिवाइज्ड certificate may be obtained only if the individual undergoes surgery to change their gender either as a male or female. So यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहे हैं कि if somebody wants to have a certificate of identity तो वो कैसे obtain कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास एक एप्लीकेशन लगा के, राइट। जस्ट अ सेकेंड, आई विल ओके। हाँ, दिस इज इन डिटेल। आप अगर रिकॉग्नाइज होना चाह रहे हो तो आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास एक सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी के लिए ले जाओगे। इफ द पर्सन इज अ माइनर, तब क्या होगा, एप्लीकेशन उसके पेरेंट या उसके गार्जियन लगाएंगे एंड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैल इशू द सर्टिफिकेट आफ्टर फॉलोइंग प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर, right? So certificate shall be a proof of a recognition of person's identity as transgender. The gender of such person shall be recorded as per the certificate's content in all their official documents. So यहाँ पे यही ये बात कर रहे हैं कि कैसे आप recognition करोगे। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे क्या लगा है कि अगर कोई पर्सन है जो सर्जरी कराता है एंड दैट पर्सन गोज थ्रू सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरीज, उन सिचुएशंस में वो दोबारा एक एप्लीकेशन डाल सकता है। किन किन रिक्वायरमेंट्स के साथ, आपको एक सर्टिफिकेट डालना है मेडिकल सुपरिंटेंडेंट का और चीफ मेडिकल ऑफिसर का फॉर मेडिकल इंस्टीट्यूशन वेयर द पर्सन अंडरवेंट द सर्जरी। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको जो है मेडिकल सुपरिंटेंडेंट से एक सर्टिफिकेट लेना है, या तो मेडिकल सुपरिंटेंडेंट से या CMO से, और वो सर्टिफिकेट आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ले जाना है जो फर्दर आपका सर्टिफिकेट रिवाइज करके आपकी नई आइडेंटिटी लगा देगा, right? The person holding a certificate of identity shall be entitled to change their first name in the birth certificate and all the other official documents. So अगर आप अपना रीअसाइनमेंट सर्जरी कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, अपना नेम भी चेंज कर सकते हो बर्थ सर्टिफिकेट और सारे डॉक्यूमेंट्स में। Now
अपार्ट फ्रॉम दैट वेलफेयर मेजर्स बाय गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को क्या वेलफेयर मेजर्स लेने हैं? गवर्नमेंट को हर तरह की कोशिश करनी है कि हर एक ट्रांसजेंडर को आप पूरी तरह से इंक्लूड करो, उनको पार्टिसिपेट कराओ सोसाइटी में। साथ ही साथ आपको ऐसे स्टेप्स लेने हैं जहां पे आप ऐसे ट्रांसजेंडर्स को आप रेस्क्यू कर पाओ, रिहैबिलिटेट कर पाओ, वोकेशनल ट्रेनिंग दे पाओ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स बनाओ जो जेंडर ट्रांसजेंडर सेंसिटिव हैं, एंड उनको प्रमोट करो उनके खुद के कल्चरल एक्टिविटीज में। सो दीज आर द वेलफेयर मेजर्स दैट द गवर्नमेंट इज सपोज टू टेक। नाउ if a person फोर्सेस और अगर किसी ट्रांसजेंडर पर्सन के अगेंस्ट कोई पर्सन है जो फोर्सफुली उससे बॉन्डेड लेबर करा रहा है, उसको पब्लिक प्लेस नहीं यूज करना चाह रहा है, उसको रिमूव कर देता है किसी ट्रांसजेंडर पर्सन को उसके हाउस होल्ड से या उसके विलेज से, उसको फिजिकली, सेक्सुअली या वर्बली या इमोशनली या इकोनॉमिक अब्यूज करता है, तो ये सारे आपके ऑफेंसेस हैं। और आपके यहाँ पे ऑफेंसेस में मैक्सिमम पनिशमेंट कैन अप टू 2 years, तो 6 months से 2 years तक आपकी पनिशमेंट मिल सकती है इफ एनी ऑफ दीज ऑफेंसेस आर कमिटेड अगेंस्ट अ ट्रांसजेंडर पर्सन। नाउ दिस एक्ट ऑल्सो सेज कि एक नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन बनना चाहिए, और इस काउंसिल के अंदर आपके जो मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस है वो चेयरपर्सन होंगे, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस है वो वाइस चेयरपर्सन होंगे। इसमें और कौन कौन होंगे? सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस, देन रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम मिनिस्ट्री इंक्लूडिंग हेल्थ, होम अफेयर्स, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, एंड साथ ही साथ और कौन से मेंबर्स होंगे? रिप्रेजेंटेटिव होंगे आपके नीति आयोग से, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से, स्टेट गवर्नमेंट भी अपना रिप्रेजेंटेशन देगी, एंड द काउंसिल विल आल्सो कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर्स फ्रॉम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड 5 एक्सपर्ट्स फ्रॉम एनजीओज। तो 5 आपको ट्रांसजेंडर मेंबर्स भी लेने हैं एंड 5 एनजीओज भी लेने हैं। सो इनके फंक्शंस क्या रहेंगे? ये जो ये नेशनल काउंसिल बन रहा है, इनका मेजर फंक्शंस क्या रहेगा? ये सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएंगे कि क्या पॉलिसीज बनाओ, क्या प्रोग्राम्स लाओ, किस तरह के लेजिस्लेशन लाओ ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए। साथ ही साथ जो पॉलिसीज हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, इन सबको इवैल्यूएट करना, मॉनिटर करना, ये सारी चीजें भी इनके फंक्शंस में आएंगी। टू रिव्यू एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड अदर गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर डीलिंग विद द मैटर्स ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स। सो इन सारे ही जितने भी लोग ट्रांसजेंडर पर्सन्स के साथ इन्वॉल्व हैं, जितने भी डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं, वो सारे साथ में एक्टिविटी करें, साथ में उनके एक्टिविटीज को रिव्यू करना, ये भी काम आपका नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पीपल है। टू रिड्रेस द ग्रीवेंसेस ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन, एक क्या करेंगे? जो भी ग्रीवेंसेस हैं ट्रांसजेंडर पर्सन के, उनके भी जो है बातें सुनेंगे, एंड साथ ही साथ और जो फंक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी वो सारे फंक्शन से करेंगे। ओके, सो व्हाट हैपेंड, देयर इज वन मोर थिंग, दिस इज अ स्कीम नेम्ड स्माइल। ये आपका एक स्कीम आया है जिसका नाम है स्माइल। इस स्कीम के अंदर किसने बनाया है? आपका मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने ये एक नेशनल लेवल पे स्कीम बनाया है। इसका फुल फॉर्म क्या है? सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। इस पूरे स्कीम के अंदर आपकी 2 सब थीम्स हैं, सब स्कीम्स हैं। पहला हो गया कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन फॉर वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन, और दूसरा हो गया कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन ऑफ पर्सन्स एंगेज्ड इन द एक्ट ऑफ बेगिंग। सो इन दोनों में भी आप देख रहे हो इस स्कीम में ये सारी चीजें कवर्ड हैं, एंड दिस स्कीम कवर्स both transgender persons and those who are engaged in begging, with focus extensively on rehabilitation, provision of medical facilities, counseling, education, skill development, economic linkage, with the support of state government, union territories, local urban bodies, voluntary organization, community based organization. So इनका main purpose है rehabilitate करना। रिहैबिलिटेट कैसे होता है? आप उनको मेडिकल फैसिलिटीज दोगे, आप उनकी काउंसलिंग करोगे, उन्हें एजुकेशन दोगे, स्किल डेवलपमेंट करोगे। सो दिस इज अ होल स्कीम अंडर विच ट्रांसजेंडर पीपल आर ऑल्सो कवर्ड. So now under this judgment, Supreme Court relied on this Act 2019 and on the NALSA judgment. Supreme Court ने हेल्ड किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को नेशनल काउंसिल के साथ ऐसे पॉलिसीज लाने चाहिए which reasonably accommodate
through which reasonable accommodation can be provided for a transgender person in seeking resource to avenues of employment in establishments covered by provision of 2019 Act. तो इनका क्या कहना है कि हर तरह के एम्प्लॉयमेंट मिल सके, जितने भी इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं, और हर किसी को एम्प्लॉयमेंट मिले. The enactment by the Parliament embarks a watershed in the evolution of rights of transgender person. The provision of 2019 Act need to be implemented in letter and spirit by formulated appropriate policies. तो क्या इनका क्या कहना है कि 2019 को बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सके, इसके लिए आप ढंग से पॉलिसीज लाओ. The union government must take a lead in this behalf and provide clear guidance and reasonable standards to all the entities including those of union government, state government and establishment by the 2019 Act. तो इसमें यहाँ पे यही कहना है कि इनको सबको साथ में काम करके सही तरीके से इस एक्ट को लाना चाहिए. सो ये जो इसकी नेक्स्ट डेट थी, अभी दिस केस इज नॉट येट फाइनल, ये इसका नेक्स्ट डेट इज ऑन 6th of December 2022. लेट्स सी हाउ द कोर्ट डिसाइडेड, राइट. So thank you so much for watching this session. You can follow me on Unacademy. I'm by the name of Samiksha Chaturvedi, and if you want a subscription you can use my code sami.chaturvedi. So thank you so much. I hope to see you soon. Bye bye and take care.